ठीक है, तो हमें यहाँ से शुरू करना था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। दांडी मार्च वॉज अंडरटेकन इन 1930। गांधी जी स्टार्टेड दांडी मार्च फ्रॉम साबरमती आश्रम उनका है ना, province that had the highest number of satyagrahis in Mahatma Gandhi's Dandi March, Gujarat. In 1930, Mahatma Gandhi had started civil disobedience movement from Dandi. जो इनका मार्च था साबरमती से दांडी गया और दांडी पर नमक तोड़कर इन्होंने सत्याग्रह की घोषणा की, मतलब सिविल डिसोबीडियंस की घोषणा की। ठीक है, दांडी मार्च लास्टेड फॉर 24 days. With reference to civil disobedience movement, two statements are Madan Mohan Malvi, Devdas Gandhi, and K. Munshi were punished for violating salt law. ठीक है, events और date, दांडी मार्च मार्च 12, 1930। ठीक है, ये स्टार्ट हुआ था। क्विट इंडिया मूवमेंट अगस्त 9, 1942। अराइवल ऑफ साइमन कमीशन फेब 3, 1928। गांधी इरविन पैक्ट मार्च 5, 1931। ठीक, द डेट अप्रैल 6, 1930 इज नोन इन इंडियन हिस्ट्री दांडी मार्च ऑफ महात्मा गांधी। ठीक है, अप्रैल 6 को खत्म हुआ था, शुरू कब हुआ था? 12 मार्च को। ठीक है, 24 दिन में खत्म हुआ है इन लोगों के हिसाब से। The salt agitation was launched by Mahatma Gandhi in 1930. Mahatma Gandhi's object was to make salt available free to poor. ठीक है, रीजन फॉल्स है और ये ट्रू है। ठीक है, रीजन फॉल्स है। Statement, I want world sympathy in this battle of right against might is associated with Gandhi's Dandi March. The correct statement about Mahatma Gandhi's Dandi March are, it was an altogether a pedestrian march, मतलब पैदल ही पथ यात्रा ही की थी। It started from Sabarmati Ashram and ended at Dandi. The entire march from Sabarmati was covered in 24 days. ठीक है, हमने देखा था किस डेट को शुरू हुई थी, मार्च 12 को शुरू हुई थी और खत्म कब हुई है? अप्रैल में ना, 9 अप्रैल था। 6 अप्रैल को। ठीक है, after the arrest of Gandhiji during salt satyagraha, the person who took his place as leader of the movement, Abbas Tayyab ji. ठीक है, Acharya Vinoba Bhave was arrested for the first time for taking part in civil disobedience movement. Gandhiji stayed with the foreign journalist in his Sabarmati ashram during Dandi March. वेब मिलर जो है दांडी मार्च के समय था वहां पे, मतलब वो उनके साबरमती आश्रम में रुका हुआ था। During the Indian freedom struggle, the Khudai Khidmatgar, also known as Red Shirt, called for Red Shirt या खुदाई खिदमतगार, the Pathan regional nationalist unity and a struggle against colonialism. ठीक है, तो ये जो खान अब्दुल गफ्फार खान थे उन्होंने इसको स्टैब्लिश किया था, खुदाई खिदमतगार या रेड शर्ट मूवमेंट को। ठीक है, और ये पठान थे बेसिकली। The Red Shirt organization was founded to throw out Britishers. The leader of लाल कुर्ती, वही रेड शर्ट लाल कुर्ती खुदाई खिदमतगार एक ही हैं। कौन थे उनके फाउंडर? खान अब्दुल गफ्फार खान। The soldiers of Garhwal regiment refused to fire on the revolutionaries in civil disobedience movement. At the time of national movement, the person who started Dash Roza periodical अब्दुल गफ्फार खान ने शुरू किया था। और जिया तरंग मूवमेंट मणिपुर में था। जिया त्रांग है, ठीक है, नॉट तरंग, जिया त्रांग मूवमेंट मणिपुर में शुरू हुआ था। एजिटेशन अगेंस्ट चौकीदारी टैक्स इन बेगूसराय वॉज पार्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, बेगूसराय कहाँ है? बिहार में। सॉल्ट सत्याग्रह इन भागलपुर वॉज लेड बाय महादेवलाल सराफ। भागलपुर सॉल्ट सत्याग्रह, ये भी बिहार में। मतलब ये दोनों क्वेश्चन हो सकता है बीपीएससी में आ रहे हों। आफ्टर द फेलियर ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, गांधी जी गेव इंपॉर्टेंस टू कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स। ठीक है, डॉक्टर राधा भाई वॉज अरेस्टेड while लीडिंग procession in the second civil disobedience movement on June 13, 1932.
Prabhavati Devi was a freedom fighter of Patna. Prabhavati Devi. Gandhi-Irvin Pact. The main purpose of Gandhi-Irvin Pact was to make the participation of Congress easier in the Round Table Conference. Gandhi-Irvin Pact include Gandhi-Irvin Pact क्या क्या include करता है? Invitation to Congress to participate in Round Table Conference, withdrawal of ordinance promulgated in connection with civil disobedience movement, release of only prisoners who were not charged with violence. ठीक है, ये 3 चीजें उसमें मानी गई थी, कह सकते हो. इवन सॉल्ट लॉ वाला नहीं, गांधी में शायद सॉल्ट लॉ वाला भी मान लिया गया था. ठीक है, जो सॉल्ट लॉ पे टैक्स था, मतलब सॉल्ट पे टैक्स था. हाँ, सॉल्ट पे टैक्स वाला वो विड्रॉ किया गया था. गांधी इरविन पैक्ट वाज साइन इन 5 मार्च 1931. ठीक है. द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन वाज हेल्ड इन बैकड्रॉप ऑफ इरविन गांधी पैक्ट. ये गांधी इरविन पैक्ट. द रोल ऑफ मीडिएटर. हाँ, द रोल ऑफ मीडिएटर इन गांधी इरविन पैक्ट कौन था? तेज बहादुर सप्रू. ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये यूपी से थे. ठीक है, तेज बहादुर सप्रू, टीवी सप्रू. She called Irvin and Gandhi the two Mahatmas. सरोजिनी नायडू, इनको कुछ और नहीं मिला था कहने को. ठीक है, the two Mahatmas. He took Mahatma Gandhi's gain in Gandhi-Irvin Pact as consolation prize. किसने? एलन कैम्पबेल जॉनसन. इसने कहा था कि जो गांधी इरविन पैक्ट है वो एक तरह का कंसोलेशन प्राइज है. फिर कराची सेशन ऑफ कांग्रेस 1931 एंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. The correct chronological order of following event connected with India's struggle for independence. तो इसमें कौन सा मतलब सीक्वेंस इन्होंने दे ही दिया है. गांधी इरविन पैक्ट हुआ, एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह, कराची सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. ठीक है. करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस वही है. गांधी इरविन पैक्ट, एग्जीक्यूशन ऑफ राजगुरु, कराची सेशन ऑफ आईएनसी, पूना पैक्ट. तो मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना अबुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू. विच लीडर अटेंडेड द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? मौलाना मोहम्मद अली. ठीक है, पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पूछ रहा है इनमें से किसने अटेंड किया था? तो मौलाना मोहम्मद अली. ये वही है क्या? मौलाना मोहम्मद अली जिन्ना नहीं लिखा है शायद, ये वही है जहाँ तक मुझे याद है. Correct statement about the round table conference are it was held in 1930. पहला round table conference की बात हो रही है. It was held in 1930. It was to discuss the report of Simon Commission. It was held in London. ठीक है. Christians were represented in first round table conference by K.T. Paul. ठीक है. राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अलग अलग पार्टी के लोगों को बुलाया गया था. कांग्रेस को भी बुलाया गया था. कांग्रेस ने सिर्फ एक में पार्टिसिपेट किया. बाकी पार्टी के जो अध्यक्ष थे या इंपॉर्टेंट लोग थे उन्होंने लगभग तीनों में पार्टिसिपेट किया था. ठीक है. फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन लीडर्स वाज समन्ड इन लंदन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1930 among महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय, मौलाना आजाद who participated in second round table conference. गांधी, मालवीय एंड आजाद. ठीक है. He did not participated in second round table conference. जवाहरलाल नेहरू. इनफैक्ट वो किसी में भी नहीं पार्टिसिपेट किए थे. सेकंड की बात ही छोड़े. Among M.K. Gandhi, Sarojini Naidu, पंडित मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद who did not participate in second round table conference. राजेंद्र प्रसाद ये भी किसी में भी नहीं थे. कांग्रेस वाले सिर्फ कांग्रेस की तरफ से रिप्रेजेंटेशन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गया था जिसमें सरोजिनी नायडू और महात्मा गांधी थे. He represented Congress in second round table conference. महात्मा गांधी. J.L. Nehru represented the Indian National Congress in second round table conference. गलत है. ठीक है. It was implicit in Gandhi Nehru Pact that INC will participate in the second round table conference 1931. ये सही है. Gandhi ended this round table conference only second. Attended not ended. ठीक है. Gandhi attended this round table. सेकंड ही अटेंड किए थे क्योंकि वो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था. उसी के बाद उन्होंने कहा था कि जाएंगे तो गए थे. फिर लेकिन खुश नहीं हुए तो थर्ड में नहीं गए. महात्मा गांधी stayed at this place in London during second round table conference, Kingsley Hall. ठीक है.
Gandhi left Bombay for London for second round table conference aboard ship SS राजपुताना, ठीक है। मतलब लंदन से बॉम्बे वो SS राजपुताना में आए थे। नहीं, लेफ्ट बॉम्बे फॉर, अच्छा बॉम्बे से लंदन गए थे, मतलब कॉन्फ्रेंस अटेंड करने SS राजपुताना में गए थे। कांग्रेस रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेटेड इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फॉर द फर्स्ट टाइम इन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन December 1931 empty handed from London. Second round table conference failed on issues of communal delegation. अच्छा, इंडिया इंडियन हु पार्टिसिपेटेड इन ऑल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस B.R. अम्बेडकर, ठीक है। बताया था जो अलग अलग पार्टीज को बुलाया गया था उनके जो अध्यक्ष वगैरह थे वो सारे ही कॉन्फ्रेंस में गए थे। अम्बेडकर, जिन्ना, मदन मोहन मालवीय, ये लोग सारे ही कॉन्फ्रेंस में गए थे, ठीक है। वो हिंदू महासभा के थे ना उस समय, मदन मोहन मालवीय। It would be incorrect to refer meeting of Indian and British political leader during 1930-32 in London as first, second, third conference because it was an instance of a conference held in 3 sessions and not three separate conference, ठीक है। ये कहने को था कि 3 कॉन्फ्रेंस हुई है, फर्स्ट राउंड टेबल या सेकंड या थर्ड, पर ये एक ही कॉन्फ्रेंस है और 3 उसमें पार्ट में हुआ था, ठीक है। Round Table Conference that was held in 1932, third. Indian National Congress did not take part in first and third. Following correct statement, इसमें correct statement है. In the first Round Table Conference, Dr. Ambedkar demanded separate electorate for depressed classes. और ये मान भी ली गई थी ना इनकी बात. In Pune Pact, in the Pune Pact, special provision for representation of depressed people in the local bodies and civil services were made. The Indian National Congress did not participate in third round table conference, ठीक है। अभी इस हाँ पूरा पूरा कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट में चीजें क्लियर हो जाएंगी थोड़ी ज्यादा। ऑन द इशू ऑफ कम्युनल अवार्ड, हु इशूड कम्युनल अवार्ड? रैमसे मैकडोनाल्ड, ठीक है। रैमसे मैकडोनाल्ड उसमें प्राइम मिनिस्टर थे ना यूके के। सेपरेट इलेक्टोरल ग्रुप was made by the Communal Tribunal of Ramsay MacDonald first time in August 1932 for untouchables. इसमें इन्होंने कितना कहा था? 71 सीट्स, 71 सीट्स देंगे और वो लोग एग्री किस पे हुए थे? 147 पे शायद, ठीक है। जब मतलब एग्रीमेंट हुआ था पूना पैक्ट में, देखते हैं अभी शायद हो। Assertion reason है the British government announced the communal award in August 1932. It allowed to each minority a number of seats in legislature to be elected on the basis of separate electorate, ठीक है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, ये भी सही है, ये भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। Separate electorate and reserved seats by communal award of MacDonald or allocated to किनको किसको? मुस्लिम्स को, तो वो तो पहले से था, डिप्रेस्ड क्लास को और सिक्स को, ठीक है। महात्मा गांधी स्टार्टेड फास्ट अनटू डेथ एट द टाइम ऑफ कम्युनल अवार्ड, ठीक है। पहला उनका जो फास्ट अनटू डेथ था वो कम्युनल अवार्ड के टाइम उन्होंने किया था, कम्युनल अवार्ड के अपोज में, ठीक है, उसके अगेंस्ट में। महात्मा गांधी undertook fast and rotate in 2000 कह रहे हैं 1932 mainly because Ramsay MacDonald knows communal award. हाँ, अब इसमें देखो seats that were given to depressed classes under communal award and Pune Pact, तो उनको 71 सीट्स कम्युनल अवार्ड में मिला था और जब पूना पैक्ट हुआ तो उनको कहा गया कि हम आपको 147 सीट्स देंगे, ठीक है। तो कांग्रेस ने उनको 147 सीट्स ऑफर किए थे। Pune Pact was concerned with depressed classes. The purpose of Pune Pact was to provide representation of untouchable. The Pune Pact defeated the purpose of communal award. It paved the way for representation of seats in parliament and state assemblies for STs and SCs. ये दोनों ही सही स्टेटमेंट है शायद ना, असर्शन रीजन दोनों सही हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। डॉक्टर अंबेडकर एंड गांधी जी हैड पैक्ट कॉल्ड पूना पैक्ट। उस समय वो जेल में बंद थे, शायद जेल में ही एग्रीमेंट हुआ था और इसमें गांधी जी की साइन नहीं की गई थी, उनके बिहाफ पर किसने साइन किया था? In August 1932, British government announced communal award. Under this,
certain seats were reserved for each minority committee in the legislature for which the member were elected from separate electorates. मतलब करेक्ट स्टेटमेंट भी है और दोनों एक्सप्लेनेशन भी उसका सही है. Pune Pact was signed after Gandhiji's fast unto death against Communal Award. The Pune Pact was signed on September 24, 1932. This agreement was signed by Gandhiji's supporter and Ambedkar Gandhiji did not sign. अच्छा, गांधी जी के सपोर्टर ने किया था और अंबेडकर ने किया था, गांधी जी ने खुद साइन नहीं किया था. ठीक है. After Pune Pact of 1932, Harijan Sevak Sangh was established. Its president was Ghanshyam Das Birla, G.T. Birla. हरिजन सेवक संघ के जो प्रेसिडेंट थे कौन थे? घनश्याम दास बिरला, जी.डी. बिरला जिनको कहते हैं. पूना पैक्ट के बाद ही बना था. द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, या जिसका बाद में नाम बना था हरिजन सेवक समाज, उसके पहले प्रेसिडेंट थे जी.डी. बिरला. अभी ऊपर हमने देखा था. ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास लीग वॉज एस्टेब्लिश बाई बाबू जगजीवन राम. ये दूसरी है. देखो, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास लीग है और ये ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग है. दोनों में अंतर है. ठीक है. ये वाला बाबू जगजीवन राम ने बनाया. द फॉर्मर नेम ऑफ हरिजन सेवक संघ वॉज ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग. ये जी.डी. बिरला इसके चेयरमैन हुए थे. ठीक है. हरिजन सेवक संघ वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय महात्मा गांधी. All India Scheduled Caste Federation was founded by Dr. B.R. Ambedkar in 1942. All India Scheduled Caste Federation. Out of given options, namely B.R. Ambedkar, Madan Mohan Malvi, C. Rajagopalachari, M. K. Gandhi, who did not sign on Pune Pact. ठीक है. इसमें महात्मा एक गांधी. चीज बताइए सर, ये जो हरिजन सेवक संघ वाला है, इसको ऑर्गेनाइज महात्मा गांधी ने किया है, और ये मतलब ये जी.डी. बिरला क्या इसके प्रेसिडेंट रहे हैं उसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे. हाँ, पहले इसका नाम कुछ और था, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग करके अनटचेबिलिटी, था. है बाद ना? में हाँ, हाँ, हरिजन सेवक संघ नाम रखा गया था. और इसमें कह रहा है कि जो पूना पैक्ट था उसमें मतलब महात्मा गांधी ने साइन नहीं किया था, उनकी जगह मदन मोहन मालवीय और सी राजगोपालाचारी ने किया था. ठीक है. और अच्छा, अम्बेडकर ने तो ठीक है। किया ही था. हम्म Who said that Mahatma Gandhi, like a fleeing phantom, raises dust but not the level? B.R. Ambedkar. ठीक है. Congress Socialist Party 1934. The first meeting of Congress Socialist Party held in 1934. आउट ऑफ गिवन नेम्स कौन थे? मतलब इसमें अगर देखा था आचार्य नरेंद्र देव और जो एक और थे ना इसमें जयप्रकाश नारायण. ठीक है. कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वाज फाउंडेड इन 1934 बाय आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण. द गवर्नर ऑफ, अच्छा जयप्रकाश नारायण, सेम क्वेश्चन है, कई बार रिपीट है. जयप्रकाश नारायण एसोसिएटेड विद कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी. बिहार सोशलिस्ट पार्टी वाज फाउंडेड बाय जेपी नारायण. ठीक है. वही जयप्रकाश नारायण. लोक नायक टाइटल इन्हीं को दिया था, जयप्रकाश नारायण को. जयप्रकाश दिवस सेलिब्रेटेड इन अप्रैल 1946. जयप्रकाश दिवस. अच्छा. श्री नरसिंह नारायण सोशलिस्ट थे. करेक्ट स्टेटमेंट है. बॉम्बे मैनिफेस्टो, द बॉम्बे मैनिफेस्टो साइंड इन 1936 ओपनली अपोज द प्रीचिंग ऑफ सोशलिस्ट आइडियाज. बॉम्बे मैनिफेस्टो ने सोशलिस्ट आइडियाज को मतलब अपोज किया था एक तरह से. इट इवोक्ड सपोर्ट फ्रॉम लार्ज सेक्शन ऑफ द बिजनेस कम्युनिटी फ्रॉम ऑल अक्रॉस इंडिया. ठीक है. क्योंकि सोशलिज्म में मतलब बेसिकली उनका ये था कि अगर गवर्नमेंट सोशलिस्ट हो जाएगी तो वो हमारे उस पे कब्जा कर लेगी और हमें बहुत टैक्स लगाएगी. तो इसलिए उसका अपोज किया था इन लोगों ने. और इसमें क्योंकि ज़्यादातर बिजनेस कम्युनिटी के लोग थे तो ऑब्वियसली बात थी, उनको थोड़ा सा था ऐसा शक. Provincial election and formation of cabinet 1937. The provincial government were continued under the Act of 1935. The province, central province, Bihar, Punjab, Madras, where the Indian National Congress could not get absolute majority during the general election of 1937. पंजाब. ठीक है. पंजाब, यूपी, बंगाल यहाँ पे नहीं मिला था इनको शायद. एक आध दो जगह मतलब आध दो जगह कोलिशन गवर्नमेंट इन्होंने बनाई थी और कुछ जगह तो इनको गवर्नमेंट में ही नहीं रखा गया था. In 1937 election, Congress secured a clear majority in 5 states. ठीक है. Indian National Congress did not form its
मिनिस्ट्री आफ्टर जनरल इलेक्शन ऑफ 1937 वर बंगाल एंड पंजाब। बंगाल और पंजाब में कांग्रेस नहीं थी, ठीक है। द टेनर ऑफ कांग्रेस मिनिस्टर्स formed in elections of 1937 after Act of 1935 was 28 months, ठीक है। इसके बाद उन्होंने रिजाइन कर दिया था, जिसको मुस्लिम लीग ने डे ऑफ डिलीवरेंस के रूप में मनाया था ना। After the formation of ministries in the provinces in 1937, Congress rule lasted for 28 months, ठीक है, 28 months। मुस्लिम लीग ने उस दिन को डे ऑफ डिलीवरेंस मनाया था, किस रूप में मनाया था 1939 में। नेम द वर्किंग कमिटी इन विच द कांग्रेस adopt the policy of abolishing land ownership वर्किंग कमिटी 1937। अगर लैंड ओनरशिप कहते हैं अबॉलिश कर दोगे तो मतलब किसी के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रहेगी, तो एक तरह से कम्युनिस्ट स्टेट बनाने की बात। द पर्सन हु वाज इंटरेस्टेड विद फाइनेंस पोर्टफोलियो इन मिनिस्ट्री फॉर्म इन यूपी आफ्टर 1937 इलेक्शन, रफ़ी अहमद किदवई, ठीक है। द chronological order of report that are connected with Muslim grievance in the Congress administered provinces कौन था? पीरपुर रिपोर्ट, शरीफ रिपोर्ट, मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल, ठीक है, याद कर लेना। पीरपुर रिपोर्ट, शरीफ रिपोर्ट और मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल, ये रिपोर्ट जो मुस्लिम्स थे, मुस्लिम की ग्रीवांसेस थी कांग्रेस एडमिनिस्ट्रेटेड प्रोविंस में, उसके लिए था। फिर त्रिपुरी क्राइसिस ऑफ कांग्रेस 1939। Elected president of Indian National Congress in 1938 was सुभाष चंद्र बोस। कौन सा सेशन था? हरिपुरा सेशन। और हरिपुरा सेशन कहाँ था? गुजरात में, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस was chosen। अच्छा, उसके बाद 1939 वाला सेशन कहाँ हुआ था? जबलपुर सेशन। उसमें भी सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट थे। और सुभाष चंद्र बोस ने किसको हराया था सेकंड सेशन में, सेकंड टाइम, मतलब जबलपुर वाले में? जो त्रिपुरी सेशन था, त्रिपुरी सेशन जबलपुर, ठीक है। हरिपुरा गुजरात। और जबलपुर वाले में मतलब पट्टाभी सीतारमैया जो थे उनको हराया था। और इसी पे ही जो महात्मा गांधी जी थे उन्होंने कहा कि सीतारमैया की हार मतलब मेरी हार है, ठीक है। त्रिपुरी सेशन 1939। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहते हैं कांग्रेस छोड़ दी और वो अपना फॉरवर्ड ब्लॉक बनाए थे। द पर्सन हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस आफ्टर रेजिग्नेशन ऑफ सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद। इंपॉर्टेंट है कि मतलब उन्होंने गुस्से में रिजाइन कर दिया और उसके बाद राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। द होल डिस्प्यूट बिटवीन सुभाष चंद्र बोस एंड राइट विंग आफ्टर द त्रिपुरी सेशन ऑफ कांग्रेस इंटर्ड अराउंड द क्वेश्चन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस वर्किंग कमेटी, ठीक है। Indian nationalist leader who looked upon a war between Germany and Britain as godsend opportunity that enabled Indian to exploit the situation to their advantage, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी से बोला कि अभी वो लड़ाई हो रही है, जो ब्रिटिश हैं वो उसमें इन्वॉल्व रहेंगे, तो यहाँ पर हम लॉन्च कर सकते हैं कोई मेजर मूवमेंट, ठीक है। तो गांधी जी ने मना कर दिया, ठीक है। और तो वो क्विट इंडिया मूवमेंट बाद में ले आए 1942 में, लेकिन उस समय मना कर दिया था शुरू में। तो उससे सुभाष चंद्र बोस बड़े गुस्सा हुए कि मतलब इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी था और ये बंदा कर नहीं रहा है। तो उनका गांधी का ये था कि वो हमसे बड़े इविल से, मतलब भले ही वो इविल है पर वो बड़े इविल से लड़ रहा है तो हमें उसका साथ देना चाहिए। पता नहीं 1942 तक कैसी समझ में आया कि नहीं साथ देना चाहिए। इंडियन प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है। द पर्पस ऑफ बटलर कमेटी 1927 क्या था? इम्प्रूवमेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इंडियन प्रोविंसेस एंड क्राउन, ठीक है। In India, State People Conference was set up in 1927. Most of the integration of princely state in the Union of India had taken place in year 1947. Obvious बात है। और इन किसकी लीडरशिप में? सरदार पटेल की। जम्मू कश्मीर कब बना था इंडिया का इंटीग्रल पार्ट? 26 अक्टूबर 1947। और जो तीन इंडियन स्टेट जिन्होंने डिले किया था एसेशन, ठीक है, कौन थे? जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर। प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस इन 1939 जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस इन 1939 जवाहरलाल नेहरू।
शुरू में कांग्रेस थोड़ा मतलब इनसे इन जो स्टेट कॉन्फ्रेंस वगैरह थी उनसे थोड़ा दूर रहता था, मतलब उनको सब उतना सपोर्ट खुल के नहीं करता था। बाद में इनको लगा कि नहीं, अगर वहाँ से ऐसी आवाज़ें उठ रही तो हमको इनको अपने साथ मिलाना चाहिए, और फिर जब ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस वगैरह बना तो उसको सपोर्ट किया गया, और उन्होंने नेहरू को अपना प्रेसिडेंट बनाया, क्योंकि नेहरू कांग्रेस के भी मतलब जाने माने चेहरे थे। Among Punjab, Assam, Bengal, Bihar, which province came forward with a plan for a united independent existence at the time of partition of India? Punjab. Uh, the state party to stand still agreement, Hyderabad. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में है। The policy of Indian National Congress during Second World War was cooperation of Britain in case of assurance of complete independence। ठीक है, कांग्रेस ने कहा कि अगर वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस का वादा करते हैं तो हम पूरा कोऑपरेट करेंगे। पर वो लोग भी चालाक थे, वो लोग भी जो कमेटी वो भेजे मिशन मिशन, वो कह रहे हैं कि भाई वर्ल्ड वॉर के बाद हम दे पाएंगे जो दे पाएंगे, पोस्ट डेटेड चेक। ठीक है, तो स्टेटमेंट है इंडियन नेशनल कांग्रेस हैड कोलैबोरेटेड या असिस्टेड ब्रिटिश इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और इसमें रीजन क्या है? बिकॉज दे वर एक्सपेक्टिंग टू कंप्लीट इंडिपेंडेंस। दोनों ही गलत हैं। Congress ministries in all provinces resigned in year 1939. The Congress did not accept the decision of the Viceroy to declare war against Germany in context Second World War। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट वैसे सही हैं, पर ये पता नहीं वो तो इसलिए मतलब रिजाइन कर दिए थे कि उनको ये नहीं मंजूर था कि आप इंडियंस को क्यों उसमें ले जा रहे हो, जर्मनी पे हमला कर रहे हो या नहीं कर रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है, वो इंडियंस को क्यों घसीट रहे हो, इससे शायद इसलिए किया था। ठीक है, अब इसमें लेकिन दोनों बोला है कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं और एक्सप्लेनेशन भी है, पता नहीं कैसे। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ended in 1945। ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन मिस्टर चर्चिल। फिर डिमांड फॉर पाकिस्तान। द आइडिया ऑफ सेपरेट नेशन फॉर मुस्लिम वॉज गिवन बाय सर मोहम्मद इकबाल। ठीक है, द पर्सन हु यूज्ड प्राइमरली द वर्ड पाकिस्तान फॉर सेपरेट स्टेट फॉर इंडियन मुस्लिम्स, चौधरी रहमत अली और उनके दोस्त लोग। द पाकिस्तान रेजोल्यूशन वॉज ड्राफ्टेड बाय सिकंदर हयात खान। और मोहम्मद अली जिन्ना वॉज कॉल्ड एन एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी बाय सरोजनी नायडू। ये शुरू में था उसका जो एटीट्यूड, इसलिए ऐसा कहा गया था, बाद में वो एकदम से उल्टा था। द रिमार्क नेहरू इज पैट्रियट वाइल जिन्ना इज पॉलिटिशियन वॉज मेड बाय मोहम्मद इकबाल। ठीक है, A separate homeland for Muslims found for the first time a definite expression in the presidential speech of Iqbal at Allahabad session of Muslim League in 1930। ठीक है, 1930 में उनकी मतलब स्पीच हुई थी इकबाल की, तब ज़्यादा उनको मिला था। ठीक है, अलग होमलैंड के लिए वॉइस। फिर क्या, रेजोल्यूशन डिमांडिंग द फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान वाज पास्ड बाय मुस्लिम लीग इन ईयर 1940। ये वाला शायद लाहौर में होता ना। पाकिस्तान रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय मुस्लिम लीग इन मार्च 1940। द पर्सनैलिटी हु मूव्ड द रेजोल्यूशन फॉर क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान इन मुस्लिम लीग सेशन ऑफ 1940 वाज खलीक कज़मान। ठीक है, खलीक कज़मान करके नाम है इसका। और कौन सा सेशन था? टू नेशन, अच्छा, मुस्लिम लीग एनुअल सेशन विच गेव इफेक्ट टू जिन्नास टू नेशन थ्योरी, लाहौर सेशन। ये शायद 1940 वाला लाहौर सेशन ही था। और मुस्लिम लीग हैड पुट देयर प्रपोजल ऑफ द डिवीजन ऑफ इंडिया in the session, Lahore session. Muslim League celebrated Pakistan Day on 23rd March 1943। 23rd March 19, ठीक है, पाकिस्तान डे। लाहौर सेशन 1940 ऑफ मुस्लिम लीग वाज चेयर्ड बाय मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, तो इसको हम यही रुकते हैं, इसके बाद हम शुरू करेंगे इंडिविजुअल सत्याग्रह 1940 से। तब तक के लिए धन्यवाद।